thank you everyone for joining this session, which is on our new dealer EXE, Compiler dealer EXE. Please give us a few moments. We'll be starting in the next few minutes. So once again, thank you everyone for joining this session. So we have Charan Rai along with us, who is from the Kambala team. He'll be helping us and guiding us through the entire journey of the new Kambala dealer EXE. So Charan, over to you. Please take us over through the EXE module. Also, we'll request all the participants to park their questions and queries. Once the session is done, we'll take up all the Q&As at the end of the session. Thank you so much. Over to you, Charan. Yeah, hi everyone. So I'll just begin with the demo. I'll just share my screen. Please let me know once the screen is visible to you guys. Charan, yes, it's visible. Yeah, so yeah, this is how the module looks like. This is a dealer application. So I'll start with the step-by-step demonstration of each feature. Menu-wise, I mean market, trading, and all the options which are available in the settings. So in case if you have any queries, you can just let me know. I mean, in between when you have any doubts, or you can note it down and come back with the queries later on. So I'll just begin with the MarketWatch group settings, which is basically used to create MarketWatch groups for any dealer. He can have multiple MarketWatch groups, and he'll have an access to default groups as well here on the right hand side, wherein all these Nifty 100, Nifty 50 constituents of these particular indices will appear as a MarketWatch. So if you just, these are all stored at the server level. If you just double click on it, the scripts will appear as a MarketWatch. I just double click on Nifty 50 and Nifty 50 appeared as a MarketWatch here. So we have multiple such options. If you have any customized groups, you can just let us know. We can add it as a MarketWatch. So this is one thing. And one more thing, what we can highlight from here is there is a export and import option,
which is available in the MarketWatch group. So what it does is, if you can just import all these MarketWatch groups which are available here, which is created by the user himself, can export into some other machine or some other users. So if a user logs into this machine, say this is my machine, with the same user, if he logs into different machine, in that case, you don't need to export or import. All these MarketWatch groups will be stored in the server and it will appear by default. Only in case if you want to transfer these MarketWatch groups to some other user who is not, does not have access to MarketWatch, you can just use export and uh, yeah, you can export and import to other machines. So Nikhil sir, should I continue with the Hindi? Yes, please, sir. Yeah. सो आपको यहाँ पे मार्केट वॉच ग्रुप्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का ऑप्शन भी मिलेगा, जहाँ पे आपका जो भी क्रिएटेड मार्केट वॉच है ना, वो आप एक्सपोर्ट करके किसी दूसरे यूजर को इंपोर्ट कर सकते हैं, जो आपका जो भी मार्केट वॉच ग्रुप है वो भी देख सकता है। और यहाँ पे जो राइट क्लिक में जो डिफॉल्ट मार्केट वॉच ग्रुप्स है वो अपने सर्वर लेवल पे स्टोर्ड है, और यहाँ पे ये जो आप डबल क्लिक करते हो ना, तब आपका एक ये निफ्टी 50 का इंडिसेस जो है वो एज अ मार्केट वॉच ग्रुप आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये तो मार्केट वॉच ग्रुप का है, और आपको यहाँ से रीनेम, डिलीट, वो सब ऑप्शन मिल जाएगा, और जो भी आपको रीनेम करना है मार्केट वॉच, वो भी ऑप्शन आ जाएगा। और एक जो और जो सेटिंग जो आप इधर जो कॉलम लगाए हो, आपको कोई दूसरे मार्केट वॉच को भी वो लगा, राइट क्लिक करके अप्लाई टू ऑल करना है, तब वो सभी जो सेटिंग्स है वो सभी मार्केट वॉच ग्रुप हो जाएगा। और अपना एक स्पॉट रेट्स का ऑप्शन है। स्पॉट रेट्स मतलब आपका इंडेक्स जो है, आप मल्टीपल इंडिसेस यहाँ डाल सकते हो, और आपको ये एज अ मेनू, एज अ एप्लीकेशन आ जाएगा। मतलब जब मैं कोई दूसरे मेनू पे जाऊंगा ना, तो भी आपको ये इंडिसेस आप मॉनिटर कर पाओगे। आप एक्सेल पे कोई दूसरा काम करते हो, तब आपको ये देखना है, तो आप ये मॉनिटर कर पाओगे। ये ऑप्शन भी है, अगर ये आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल भी कर सकते हो। मतलब आपको ये ओपन करके यहाँ से कहीं से टैब पे रखना है, वो भी टैब का सेटिंग्स यहाँ ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने अभी ये क्लोज करके मैं यहाँ फ्लोट स्पॉट रेट्स डिसेबल कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ये सेटिंग्स विंडो है, जहाँ मैं वो ये विंडो का बाद में आता हूँ। पहले मैं ये स्पॉट रेट्स का जो ये फील्ड है वो अगर मैंने स्पॉट रेट्स ऐसा कर दिया, तो आपको ये स्पॉट रेट्स जो फील्ड है वो आपको एज अ विंडो आ जाएगा और यहाँ पे दिख जाएगा। मतलब ये अभी अगर ये डॉक्ड है, तो आप दूसरे में विंडो पे कहीं जाओगे ना, तो आपको ये विंडो आएगा नहीं, सिर्फ स्पॉट रेट्स एनेबल करने पर आएगा। और एक और चीज में आप मिनट, ये जहाँ मिनिमाइज करने का, हाइड करने का ऑप्शन देख रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आप जहाँ देख रहे हो, यहाँ पे भी आप इंडिसेस डाल सकते हो। तो ये इंडिसेस डालने का ऑप्शन मैं बता रहा हूँ कैसा है। ये इंडेक्स वॉच बोल के है, यहाँ पे स्पॉट रेट्स के बाद एक इंडेक्स वॉच है मार्केट में। आप इंडेक्स वॉच में जाओगे ना, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करने के बाद ऐड इंडेक्स टू मार्केट वॉच, ऐड इंडेक्स टू टाइटल बार। ऐड इंडेक्स टू मार्केट वॉच क्या करेगा, ये इंडिसेस जो है वो मार्केट वॉच को ऐड करेगा, और ये ऐड इंडेक्स जो है ये स्पॉट रेट्स को ऐड करेगा, जो मैंने यहाँ स्पॉट रेट्स दिखा है। इंडेक्स टू टाइटल बार जो है वो आपको इधर टाइटल बार में ऊपर निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 जो है ना, उधर ऐड करके दिखाएगा। ये जो जनरल मार्केट वॉच है, मतलब जनरल इंडेक्स वॉच है, जो भी इंडिसेस है सभी सभी यहाँ से लिस्ट होके दिखाएगा। और एक मिनट, ओके, और ये हुआ इंडेक्स वॉच का। दूसरा अपना ऑक्शन मार्केट वॉच है। अभी शायद यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि ऑक्शन मार्केट वॉच में क्या होता है, जो आप मैनुअली नहीं ऐड कर पाओगे, जो भी स्क्रिप्ट्स या जो भी ट्रेडिंग सिंबल्स अपना ऑक्शन मार्केट में ट्रेड होता है ना, वो सभी स्क्रिप्ट्स आपको इस ऑक्शन मार्केट वॉच में दिख जाएगा। ऑटोमेटिक ऑटो लोडेड है, जो भी स्क्रिप्ट्स आपको ऑक्शन मार्केट में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मैनुअल करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप F6 करोगे तो आपको स्नैप कोड का ऑप्शन भी दिखेगा। और यहाँ पे आप जस्ट खाली इतना नहीं है, आपको इधर
अगर एलटीपी डालना है, एलटीक्यू डालना है, यहाँ पे आपको चेक बॉक्सेस मिलेंगे। सो चेक बॉक्सेस है, आप जो भी ऑप्शन चाहिए वो ऐड करते जा सकते हो। एलटीटी, एलयूटी, ये ऐड होता जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेंगे वो पूरा ऑप्शन जो भी टिक है वो यहाँ पे आएगा। और ये जो फीचर है, आप अगर आपको खाली बाई या सेल, खाली अपना बिट और आस्क देना है, देखना है, तभी आपको एक कॉम्पैक्ट मोड भी बोर्ड बोल के अगर राइट टॉप में मिलेगा। आप कॉम्पैक्ट मोड में क्या कर सकते हो, ये क्लिक करने पर ये पूरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा और अपना ये ऑप्शन जो है ये आपको इसमें कॉम्पैक्ट मोड में डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर यहाँ स्क्रिप्ट सर्च करना हो, आप यहाँ ये सेलेक्ट करके या टैब सेलेक्ट करने पर बीएससी और एनएससी से स्विच हो सकते हो। देखिए एनएससी करने पर ये टॉप, बीएससी और एनएससी एक्सचेंजेस में सेम स्क्रिप्ट जो है वो स्विच होता रहेगा। और अगर आपको मल्टीपल स्नैपकोट ओपन करना है तो वो भी ऑप्शन है। मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा ना तो ये दूसरा स्नैपकोट ओपन हो जाएगा, या ये आपको मल्टीपल स्नैपकोट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और आपको यहाँ से सर्च करना है कोई दूसरा स्क्रिप्ट, तो यहाँ सर्च करके एसीसी सर्च करने पर यहाँ एसीसी लोड हो जाएगा। ये ऑप्शन भी है, डायरेक्ट सर्च का ऑप्शन भी है। और ये दूसरा ऑप्शन जो स्नैपकोड के बाद है अपना ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन चेन ऑप्शन डिस्प्ले करने का है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ओ। आप कंट्रोल शिफ्ट ओ करोगे तो ऑप्शन चेन ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा। एक मिनट में यहाँ लोड करूंगा। तो आपको यहाँ आपका जो भी डेप्थ है वो पूरा दिखेगा। इधर जितना भी स्ट्राइक प्राइस है उतना स्ट्राइक प्राइस आप देख पाओगे। और आपको अगर लिमिट करना है, मतलब आपको सिर्फ 5 बाई 5 कॉल 5 पुट का देखना है, तो आपको इधर डेप्थ ऑप्शन भी है, जहाँ पे आप टोटल ऑफ 10 एंट्रीज आप देख पाओगे। और यहाँ से आप डायरेक्टली इन्वोक करके प्लेस कर सकते हो जो भी है। आप डबल क्लिक करने पर पूरा ये वो स्क्रिप्ट लोड हो जाएगा और आपको बाई और सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ से डबल क्लिक करने पर आपको स्नैपकोट इन्वोक होगा उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का। तो ये ऑप्शन, इसमें एक और ऑप्शन है, ये जो भी स्क्रिप्ट आप यहाँ डिस्प्ले होता है उस वो स्क्रिप्ट आप डायरेक्टली मार्केट वॉच को ऐड करने का ऑप्शन भी है। या ऐड टू मार्केट वॉच करने पर ये पूरा स्क्रिप्ट ऐड टू मार्केट वॉच को ऐड हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन एनेबल है। और आपको यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बटन में आप होवर करोगे तो पूरा शॉर्टकट्स का पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। F1 F2 में करने पर इन द मनी, कंट्रोल F1 F2 करने पर आउट ऑफ द मनी, डबल क्लिक करने पर उस स्क्रिप्ट का वुड बिट का प्राइस लोड होकर ऑर्डर एंट्री इन्वोक होने पर वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। और यहाँ से राइट क्लिक करने पर करके आप डायरेक्ट ऑप्शन कैलकुलेटर भी इन्वोक कर सकते हो। ये ऑप्शन कैलकुलेटर अपना गामा गामा थीटा डेल्टा वैल्यूज भी डिस्प्ले करने का ऑप्शन देता है। यहाँ से लिंक टू एक्सेल कर सकते हो। यहाँ पे मेरे इसमें लिंक टू एक्सेल नहीं है, नहीं तो क्या होगा, ये जो भी डेटा आप डायरेक्टली लिंक टू एक्सेल करने पर ये एक्सेल में से आपको रियल टाइम अपडेट होने का डेटा मिलता रहेगा। मतलब आपको एक्सेल में जो यहाँ देख पाओगे सेम चेंजेस आप एक्सेल में डायरेक्टली रेप्लिकेट कर पाओगे। ये था अपना ऑप्शन चेन वाला ऑप्शन। और उसके बाद हमारा टॉप एंड जो है, टॉप एंड जो अपना टॉप वॉल्यूम बेस पे टॉप जो टॉप गेनर है, टॉप लूजर्स है, वो डिटेल्स का भी जो है पब्लिश नहीं हुआ है, नहीं तो आपको पूरा डेटा इसमें आ जाएगा। टॉप एंड के टॉप गेनर्स 10, टॉप लूजर्स 10, उसके आपको अगर बढ़ाना है तो वो भी कॉन्फ़िगरेबल है, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। और एक और ऑप्शन हमारे पास ये है जो स्क्रिप्ट अलर्ट, आप स्क्रिप्ट वाइज अलर्ट सेट कर सकते हो। यहाँ स्क्रिप्ट वाइज अलर्ट सेट करने पर आपको एलटीपी अगर आपको कोई भी वैल्यू से रेंज से ज्यादा जाएगा उस वक्त आपको एक पॉपअप जैसा इंटीमेशन यूजर को दे सकते हैं, नहीं तो एसएमएस या ईमेल क्लाइंट को जो है वो भेज सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको क्लाइंट वाइज सेट करना है तो वो भी ऑप्शन हमने अभी दिया है, जहां पे आप क्लाइंट सेलेक्ट करोगे इधर और कोई भी क्लाइंट को अलर्ट सेट कर सकते हो। और ये जो इंटीमेशन जो है वो आपको अकाउंट और उस क्लाइंट को और डीलर को दोनों को चला जाएगा। और आप जो भी अलर्ट सेट कर चुके हो वो पूरा आपको अलर्ट विंडो बोल के एक ऑप्शन है, वो अलर्ट विंडो में दिख जाएगा। और जो आप जो भी अलर्ट सेट कर रहे हो ना वो आप अब यहाँ से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दोनों भी कर सकते हो। यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। आप मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मैं फिलहाल के लिए एक
स्क्रिप्ट अलर्ट यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और एक क्लाइंट के लिए जो जो भी क्लाइंट है उस क्लाइंट को सेट कर देता हूँ। क्रिएट अलर्ट किया, अलर्ट क्रिएट सेट हो गया। अभी आप यहाँ पे अलर्ट पे जाओगे ना, तो यहाँ पे वो अलर्ट आ गया। तो ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो, आप मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, या आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। किसी और यूजर को एक्सपोर्ट करना है तो उसको इंपोर्ट करना है तो वो भी ऑप्शन है। तो ये पूरा डिटेल्स आपको इधर से मिल जाएगा। और ये जो आपका फ्रंट एंड जो एप्लीकेशन है वो आपके हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, बेस्ड ऑन द कलर, फॉन्ट, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। उसके हिसाब से आप यहाँ से राइट क्लिक करके हेडर से यहाँ से ऐड कस्टमाइज बोल के है, यहाँ से आप कलर सेटिंग, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, विंडो का कलर चेंज कर सकते हो। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट क्लिक के मिल जाएगा। और एक अपना कॉलम चूजर ऑप्शन जो है, आप यहाँ कॉलम जो भी आपको ऐड करना है, आपको अगर कोई डायरेक्टली यहाँ डालना है तो यहाँ से ऐसा ड्रैग करके यहाँ लेके यहाँ ड्रॉप कर सकते हो। और यहाँ से अगर डिलीट करना है तो ऊपर ऐसा हटा दो, ये डिलीट हो जाएगा। ऊपर ड्रैग करने पर वो डिलीट हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, वो कॉलम ऐड हो जाएगा डायरेक्टली फ्रॉम द कॉलम चूजर। तो ये भी ऑप्शन। और अपना एक ये फीचर है जहाँ पे आप ऑर्डर एंट्री, मतलब F1 F2 वो जो शॉर्टकट्स है वो शॉर्टकट भी अपना आप कर सकते हो। ओके, ये जो अभी यहाँ पे जो है आप मतलब एंटर कर सकते हो आपका मार्केट, एसएल लिमिट, एसएल मार्केट, आपके हिसाब से जो भी ऑर्डर डालना है, जो भी एक्सचेंज सेलेक्ट करना है, जो भी सिंबल पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है, या कोई जो भी प्रोडक्ट हो अपना एनआरएमएल, सीएनसी, एमआईएस जो भी है उसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और यहाँ से प्लेस करने पर आपको तुरंत ऑर्डर चला जाएगा और ऑर्डर बुक में डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज मैं जब बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आपको स्नैप कोड सेपरेट इन्वोक ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने हमने यूजर फ्रेंडली पर्सपेक्टिव से अपने हमारे जो ऑर्डर स्नैप कोड का डेटा है वो हमने ऑर्डर एंट्री पे ही दिखा दिया है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी ऑर्डर एंट्री डेप्थ का चाहिए वो आपको ऑर्डर एंट्री में मिल जाएगा। और ये भी रियल टाइम अपडेट हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे यहाँ एक जीटीटी ऑप्शन बोल के है, जहाँ पे गुड टिल ट्रिगर ऑप्शन है। यहाँ आप जो भी सेट करते हो ऑर्डर, एलटीपी के हिसाब से या एटीपी के हिसाब से लेसर देन कंडीशन डालोगे, जब भी वो कंडीशन मीट होगा वो जाएगा। ट्रिगर होते ही मार्केट पे ओपन हो जाएगा। और ट्रिगर होते ये जो भी आपका ऑर्डर्स है, मतलब ट्रिगर जीटीटी ऑर्डर्स है, ये आपको यहाँ ट्रिगर ऑर्डर बुक बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाएगा। जो भी ऑर्डर्स प्लेस्ड है वो सभी यहाँ आ जाएंगे। और आपको यहाँ नॉर्मल ऑर्डर बुक में भी ये नॉर्मल ऑर्डर बुक में जो ट्रिगर हुए ऑर्डर्स वो नॉर्मल ऑर्डर बुक में दिख जाएगा। अभी फिलहाल अपने पास इतना ऑर्डर्स है जो कैंसल, रिजेक्टेड, कंप्लीटेड है, ओपन ऑर्डर्स नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन जो है जीटीटी, मतलब आप आज एक कंडीशन डाले हो, समझो आपका कंडीशन आज ट्रिगर नहीं हुआ, कल भी वो सेम ऑर्डर्स आप रख सकते हो। अगर जीटीटी सेलेक्ट किया तो अगले 365 डेज तक रख सकते हो। लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन आ गया उस स्क्रिप्ट पे, स्प्लिट हो या कोई भी रेट चेंजेस का अपडेट, कॉर्पोरेट एक्शन का अपडेट, उसके उसके मतलब वो इंफॉर्मेशन आने पर हम लोग, क्योंकि उसका प्राइस चेंज हो जाएगा, तो ये जीटीटी ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अभी उसमें इसमें एक और ऑप्शन है जो ओसीओ है। अगर मैं ओसीओ सेलेक्ट करता हूं तो ये मल्टी फंक्शनल ऑर्डर है, मतलब भाई आप मल्टीपल कंडीशन सेट कर सकते हो। ग्रेटर देन, लेसर देन। ग्रेटर देन को जो है, जो प्राइस अबव इतने से अबव गया तो क्या होना चाहिए, किस पे ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। अगर वो नहीं, लेसर देन आया तो किस में ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। किसी एक कंडीशन का वो सेट हो जाएगा और किसी एक कंडीशन ट्रिगर कर देगा और मार्केट ऑर्डर बुक ट्रिगर हो जाएगा, दूसरा कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अपने पास है अभी। और अभी इसमें ट्रिगर ऑर्डर बुक वो सेपरेट रहेगा,
क्योंकि जो ट्रिगर्ड ऑर्डर है वो नॉर्मली नॉर्मल ऑर्डर बुक जैसा ही होगा, इसलिए वो नॉर्मल ऑर्डर बुक में आएगा। जो ट्रिगर नहीं हुआ, अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो हमारे सिस्टम विद इन द सिस्टम रहेगा। विद इन द सिस्टम हमारे इसमें वो स्टोर होके रहेगा जब तक। तो ये है, और आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी है अपने पास, जहाँ आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, एएमओ प्री एएमओ, वो ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। ये आपको जो जब मार्केट ओपन होगा तब ये पुश हो जाएगा एट अ प्री डिफाइंड टाइम। ये सभी एक्सचेंजेस के लिए है, एनएससी एनएफओ जो भी एक्सचेंजेस एनेबल्ड है, और अपना जीटीटी ऑर्डर्स भी जो है वो सभी एक्सचेंजेस के लिए, एक्सचेंज के लिए हम लोग जीटीटी अवेलेबल करते हैं। और कवर ऑर्डर फीचर है, ब्रैकेट ऑर्डर फीचर है, और ट्रिगर ऑर्डर फीचर जो अब मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, वो ट्रिगर ऑर्डर फीचर जो है वो है अपना जीटीटी। ये जो है ये अपना ब्रैकेट ऑर्डर है, जहां पे हम लोग स्टॉप प्राइस, प्रॉफिट प्राइस और इवन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो सेट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप प्राइस मतलब अगर ये जब ट्रिगर होगा तो आप जब ऑर्डर प्लेस करोगे तो आप एक डिफरेंशियल प्राइस डालना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल अभी इसका एलटीपी समझो 854 है, तो आप स्टॉप प्राइस 10 रखोगे और प्रॉफिट प्राइस 15 रखोगे। तो स्टॉप प्राइस 855 माइनस 10, 845 का जब भी प्राइस आएगा तो ये सेल ऑर्डर ट्रिगर्ड हो जाएगा और दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। उसी हिसाब से प्रॉफिट प्राइस का भी सेम फंक्शनैलिटी है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसा भी आपको अगर आप एक टिक दिया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तब क्या होगा, एलटीपी जब भी 855 से 856 जाएगा ना, तब आपको ट्रिगर प्राइस का भी 850 845 से 846 हो जाएगा आपका। तो ये कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर का फंक्शनैलिटी है। और अपना बास्केट ऑर्डर का फीचर भी है, नॉर्मल बास्केट, स्लाइस बास्केट भी है, अपना कवर स्प्रेड ऑर्डर बास्केट, एएमओ बास्केट। यहाँ पे बास्केट ऑर्डर में आप ये सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप मल्टीपल ऑर्डर डाल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑप्शन जो भी है, और ये कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो मल्टीपल ऑर्डर्स का। और एक और फीचर मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये क्लाइंट सेट बोल के एक ऑप्शन है। क्लाइंट सेट मतलब आप यहाँ अकाउंट प्लेस करने के अलावा, अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं डाल रहा हूँ इधर, मैं एक वैलिड प्राइस डाल रहा हूँ, एक मिनट। अभी मैं डालता जाऊंगा तो ये मल्टीपल में यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा मुझे, टैब डाल के अकाउंट चेंज करके ऐसा ऐसा डालना पड़ेगा। ये आपको क्लाइंट सेट क्या करेगा, ये क्लाइंट सेट करने पर आपके हिसाब से एक क्लाइंट आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अब टेस्ट वन सेट किया, एक क्लाइंट सेट क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पे एक क्लाइंट डाल दिया। एक एक मैं अपने टेस्टिंग के हिसाब से एक दो तीन क्लाइंट्स डाल रहा हूँ और क्रिएट क्रिएट कर रहा हूँ। अभी क्या होगा, ये क्लाइंट सेट आपको क्रिएट करने पर यहाँ पे टिक करिए तो ये क्लाइंट सेट आपको यहाँ आ जाएगा। और जो भी आप ऑर्डर डालना चाहोगे इधर, तो वो एक क्लिक पे आपका क्लाइंट सेट का जो भी क्लाइंट है सभी को डाल सकते हैं। मैंने तीन क्लाइंट का क्लाइंट सेट क्रिएट किया, तो तीनों को डाल दिया, तो ये हो गया, आपको आ जाएगा ये क्लाइंट सेट। तो आप ऐसा मल्टीपल क्लाइंट सेट क्रिएट कर सकते हो और वो क्लाइंट सेट को आप ऑर्डर डाल सकते हो डाल के। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको बास्केट ऑर्डर में एक यूनिक फीचर जो है वो मिल जाएगा, और डायरेक्टली प्लेस करने पर आपको प्लेस है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी, आपको जितना भी फाइल है वो इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। वो एक्सपोर्ट करके आप प्लेस मॉडिफाई करके इंपोर्ट करके प्लेस कर सकते हो, वो भी ऑप्शन अपने पास है। तो ये दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस जो अपने पास है। और ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक, आप ऐसा ऑर्डर बुक में आप यहाँ देख पाओगे, तो आप ऑल ऑर्डर्स, स्पेसिफिक का, एक्सचेंज का, स्पेसिफिक का ऑर्डर्स भी फिल्टर करके आप देख सकते हो, ऑटो फिल्टर करके। और यहाँ भी जो आप है कलर सेटिंग वो सब कर सकते हो। और जो ये कस्टम कॉलम का जो मैंने बताया था मार्केट वॉच के लिए ही नहीं, जो भी विंडो आप यहाँ पे इन्वो करोगे वो सभी विंडो के लिए एप्लीकेबल है। मतलब आप ऑर्डर बुक हो, ट्रेड बुक हो, पोजीशन बुक हो, एडमिन पोजीशन हो, होल्डिंग्स हो, सब जो भी हो वो आप उसी के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आ जाएंगे। और यहाँ पे जो आपने यहाँ ये जो है ना, ये आप कहीं भी
सेट कर सकते हो। अगर आपको मार्केट वॉच के साथ देखना है ना, तो आप ऐसा सेट करके वो बाजू में रख सकते हो, जहाँ पे आपको पूरा ऑर्डर बुक का ऑर्डर स्टेटस डिटेल सब दिखाई देगा। और अपना एडमिन होल्डिंग्स भी है, जहाँ पे आप सभी क्लाइंट्स का होल्डिंग्स आप देख सकते हो एक साथ। और उसका पीएनएल इन्वेस्टमेंट वो सब डिटेल्स आ जाएंगे क्लाइंट बाय क्लाइंट। और ट्रेड बुक जैसे मैंने बताया, सभी ट्रेड का ट्रेड्स जो है उसी में आ जाएगा। और वहां पे भी आपको किसी एक का ट्रेड देखना हो, सभी का ट्रेड देखना हो, आ जाएगा। यहाँ से आप F6 F1 F2 सभी इन्वो कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑर्डर ट्रेड बुक विंडो में भी मिल जाएगा। और नेट पोजीशन विंडो में आपको रियल टाइम पोजीशंस आ जाएंगे। आपका जो भी पोजीशंस है, जब भी अपडेट होगा तभी रियल टाइम आता रहेगा। तो रियल टाइम बेसिस पे आपको ये पोजीशंस यहाँ दिख जाएगा। आप यहीं से स्क्वायर ऑफ कर सकते हो उस अकाउंट का वो पोजीशंस। रियल टाइम अपडेट है, रियल टाइम अपडेट आ जाएगा। और यहाँ F6 में भी, यहाँ नीचे जो आप नेट क्वांटिटी वो सब देख रहे हो, वो भी रियल टाइम बेसिस पे आपको डेटा मिल जाएगा। जब भी आप आपके पास को डीलर का कोई पोजीशन है, उसी पोजीशन पे ये यहाँ पे डेटा आएगा। और ये पोजीशन बुक व्यू, जहाँ पे सभी का पोजीशन, ये पोजीशन बुक मतलब आपको सभी अकाउंट्स का जो क्लाइंट ने क्रिएट किया है, उधर नेट पोजीशन में जो खाली डीलर क्रिएट किया वो आता है। यहाँ पे जो है जो क्लाइंट ने क्रिएट किया वो भी आता है, सभी साथ में दिखाते हैं आपको पोजीशन। वो क्लाइंट वाइज सर्च करके आप ईच क्लाइंट का पोजीशन देख सकते हो। यहाँ पे आपको अगर पोजीशन कन्वर्शन करना है कोई वन प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और जो पोजीशन कन्वर्टेड डेटा है वो आपको हम लोग एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पोजीशन कन्वर्शन बुक बोल के है। अच्छा, ओके, ये पोजीशन कन्वर्शन बुक अभी अवेलेबल नहीं हो, खाली मास्टर के लिए, सॉरी। और व्यू लिमिट्स जो ऑप्शन है, ये व्यू लिमिट्स ऑप्शन आपको सभी क्लाइंट्स के लिमिट्स, कैश, वो सब दिखाई देगा। यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। और उसका पोजीशन जो भी है वो एक ही विंडो में आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जब भी मार्जिन यूज या उसका जो भी कैश लेजर अवेलेबल है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप, कॉलम बाय कॉलम डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे शायद उसकी कोई क्लाइंट को पोजीशन नहीं है, नहीं तो उस क्लाइंट का पोजीशन भी इधर दिख जाता। सॉरी। और एक मैसेज बुक ऑप्शन है, जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट अलर्ट का इंफॉर्मेशन जो आता है वो आप यहाँ सेलेक्ट करके आप यहाँ देख सकते हो। जो भी एडमिन से मैसेज आता है, रिसर्च कॉल, ट्रेडिंग कॉल, जो भी आप भेज रहे हो या किसी और ने आपको भेजा हो, वो आपको इधर आ जाएगा। जीटीटी का जब भी ट्रिगर होगा, अलर्ट का सब जब ट्रिगर होगा तो ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और अपना ये अपना ऑप्शन कैलकुलेटर और स्पैन कैलकुलेटर के ऑप्शन है, जहाँ पे आप क्लाइंट वाइज स्पैन का देख सकते हो, वो भी अवेलेबल है। एडमिन होल्डिंग्स हो गए, स्क्रिप्ट वाइज होल्डिंग्स का एक ऑप्शन है। आप ये देख सकते हो कि आपके एक रिलायंस स्क्रिप्ट डाल के आप ये चेक कर सकते हो कि आपके कौन से क्लाइंट ने रिलायंस में होल्डिंग्स होल्डिंग्स है। आई मीन जितने भी क्लाइंट्स का रिलायंस में होल्डिंग्स है, आप एक साथ यहाँ देख सकते हो स्क्रिप्ट वाइज होल्डिंग में। और स्कैनर्स ऑप्शन भी है, स्कैनर्स ऑप्शन जो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ फिलहाल डेटा नहीं रहेगा, मैं देखता हूँ, डेटा नहीं है। अगर डेटा आने पर आपको ये रियल टाइम आपको 52 वीक हाई, 52 वीक लो, वो सब आता रहेगा। एक मिनट में देखता हूँ किसी में डेटा है या नहीं। नहीं, डेटा नहीं है। नहीं तो आपको ये पूरा हाई लो वो स्कैनर्स का डिटेल्स पूरा दिख जाएगा। और यहाँ ऐप थीम जो है, ऐप थीम मतलब आप डिस्प्ले फ्रंट एंड के हिसाब से, डिस्प्ले के हिसाब से आप अपना थीम चेंज कर सकते हो। अभी आपका एक्सप्रेस स्टाइल है, आप ऑफिस ब्लैक भी कर सकते हो। मतलब ऑफिस ब्लैक करने पर आपका डिस्प्ले जो है फ्रंट एंड का पूरा एक डार्क थीम जैसा आ जाएगा। और उसमें एक ब्लू थीम जैसा भी है, वो भी है। मतलब आप कलर, मतलब आपका डिस्प्ले उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये देखिए अभी ब्लैक थीम हो गया, तो उसका मतलब
मतलब एक विजिबिलिटी के हिसाब से, मतलब आप चेंज अपना ये चेंज कर सकते हो। ये विंडोज में हुआ। विंडोज में आप वो रिवर्ट बैक भी कर सकते हो, जो आपको एक्सप्रेस स्टाइल अच्छा लगे तो वो डार्क से ब्राइट वाइट थीम आप कर सकते हो। और ये है। और अपना पास अगर आपके पास कोई मतलब आपको कोई सेटिंग्स का चेक करना है, मतलब आपके पास कोई इस एप्लीकेशन के बारे में आपको कुछ उतना जानकारी नहीं है, तो आप हेल्प में जाके यहाँ इंडेक्स व्यू, उसका पूरा डिटेल्स आपको इधर मिल जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट के साथ कहाँ कहाँ चेक करना है उसका ऑप्शंस हम लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। और आपको अलर्ट्स चार्ट्स का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। ये बेसिकली रीड ओनली फाइल है। यहाँ पे आप चेक करके आपका जो भी ऑप्शन है यहाँ है कि नहीं, आप चेक करके देख सकते हो। और आप प्रोफाइल का जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ चेक कर सकते हो। डीलर वो आपका क्या इनेबल है वो सब। और अभी फिर मैं यूजर सेटिंग्स पे जाता हूँ। यूजर सेटिंग्स मतलब जो भी यूजर लेवल पे आप कस्टमाइजेशन करना है के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप आपका पूरा जो फ्रंट एंड का विजिबिलिटी व्यू पॉइंट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने ये फ्लोट स्पॉट ट्रेड किया था, तो आपको वो फ्लोट फ्लोट वाला ऑप्शन आया था। ओके, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इधर पे राइट क्लिक पे एक और ऑप्शन है, और डेरिवेटिव चेंज। मतलब वो स्क्रिप्ट का पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का जो भी स्क्रिप्ट लिस्ट है, वो उसका सभी स्क्रिप्ट लिस्ट इधर आ जाएगा। आप यहाँ से सेलेक्ट करके मार्केट वॉच को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ही आपको F1 करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये आप मार्केट वॉच को ऐड कर सकते हो, और वहीं से भी प्लेस कर सकते हो या डायरेक्टली भी प्लेस कर सकते हो। और जो अपना दूसरा ऑप्शन है ऑर्डर लेवल पे है, यहाँ पे आपका सब सेटिंग्स जो आपको जो भी प्रोडक्ट लिमिट या ड्यूरेशन आपको प्रिविलेज नहीं सॉरी एक्सचेंज वाइज सेट करना हो या बाई सेल हिसाब से सेट करना हो, वो आप यहाँ पे एक्सचेंज डिफॉल्ट वैल्यूज में सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको F1 इन्वोक करने पर आपको बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट MTF आना चाहिए, और F2 इन्वोक करने पर डिफॉल्ट प्रोडक्ट MIS आना चाहिए। वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिसाब से चेंज करके बाई सेल करने पर आपको आ जाएगा। ये डिफॉल्ट से। और आपका अगर आपको ऑर्डर प्लेसमेंट पर ऑर्डर कंफर्मेशन चाहिए प्लेस करने पर, वो कंफर्मेशन का ऑप्शन भी हम लोग इधर एज अ कस्टमाइजेशन आपको दे रहे हैं। और आप यहाँ मार्केट प्रोटेक्शन सेट कर सकते हो। ऑर्डर एंट्री अलर्ट, फॉर एग्जांपल आपको कुछ अलर्ट आप खुद के लिए चाहिए, जब आप एक क्वांटिटी जो आप यहाँ से 100 से ज्यादा डालोगे तो आपको कुछ अलर्ट देना चाहिए। तो आपको ये यहाँ से F1 करने पर आपको एक अलर्ट जैसा दे देगा। क्वांटिटी जब आप ऐसा प्लेस करोगे, देखता हूँ वो प्रोसेस सेट। प्लीज एंटर, ओके प्राइस का नहीं, एक मिनट। ये आ जाएगा क्वांटिटी ग्रेटर देन प्री सेट क्वांटिटी 100। वो जो 100 सेट कर, डू यू वांट टू प्लेस, वो एक पॉपअप का ऑप्शन भी है। ये क्वांटिटी प्राइस और वैल्यू के दो वैल्यू प्राइस परसेंटेज और वैल्यू के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप डिफॉल्ट क्लाइंट आईडी भी सेट करने का ऑप्शन है। बाई को सेट करना है, सेल को क्लाइंट 2 सेट करना है, NSE को एक और सेट करना है, BSE को कोई और क्लाइंट सेट करना है, वो भी है। और प्रीफिक्स सेट करने का, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट B01 से शुरू होता है, समझो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप यहाँ प्रीफिक्स दोगे तो ऑटोमेटिकली F1 में B01 आ 4535 ऐसा वो खाली एंटर करना है, तो आपको वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये सभी कलर कस्टमाइजेशन है। जो जब भी ट्रेंड डाउन होता है या ऑर्डर प्रेफरेंस का जो भाई सेल कलर आपको चेंज होना है, पोजीशन में जब पॉजिटिव होते हैं तो कलर चेंज करना है, नेगेटिव होना होता है तब चेंज करना है, तो वो सब अपने पास कस्टमाइजेशन है। और लिमिट में आपको कलर चेंज होना है, जब लिमिट पॉजिटिव है तो ग्रीन, नेगेटिव है तो रेड, वो ऑप्शन भी आप लोग कस्टमाइज करके यहाँ देख सकते हो।
ये जो है ये नोटिफिकेशन टैब है। बेसिकली जब ऑर्डर जब ओपन होता है ना, आपको एक नोटिफिकेशन जैसा आ जाता है, यहाँ टोस्ट या साउंड टिक करे तो एक तो टोस्ट आता है, ऑर्डर ओपन होता है तो टोस्ट आता है। यहाँ पे नीचे पे कि कंफर्मेशन पॉपअप, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। और ये जो है ये वर्क स्पेस रिलेटेड है। वर्क स्पेस मतलब आपका जो अभी लुक एंड फील, अभी देखिए आपने कलर चेंज किया, कॉलम चेंज किया, टेस्ट, प्रोडक्ट, कमोडिटी, ये तीनों ऐड किया, ऑर्डर बुक ऐड नहीं है। आपको कोई दूसरा वर्क स्पेस है जहाँ पे आपको बहुत सारे विंडोज ओपन होने हैं, वो आपको एक ही यहाँ वर्क स्पेस क्रिएट करके वर्क स्पेस 2 करोगे तो ये आपको एक और वर्क स्पेस क्रिएट कर जाएगा, और आप डायरेक्टली सेलेक्ट करने पर एक दूसरा ही वर्क स्पेस पूरा अपना डिस्प्ले हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं HW करके एक वर्क स्पेस, एक मिनट, एक वर्क स्पेस ऐड करता हूँ। ये वर्क स्पेस ऐड हो गया। मैं अभी आपका ओरिजिनल वर्क स्पेस में वो तीनों था, मैं अभी अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ मैंने एक ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक का एडिशनल कॉलम ऐड करता हूँ। एक मिनट में वो ऐड सेव हो रहा है, अभी हो गया। मैं F3 किया। अच्छा F3 यहाँ पे ओपन हो गया, सॉरी, यहाँ पे ओपन हो गया F3। मैं अच्छा यहीं पे रहने देते हैं F3। और F8 करना है, F8 हो गया, यहाँ F8 हो गया। अभी आपके पास टेस्ट, प्रोडक्ट, कमोडिटी के अलावा ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक का ऑप्शन भी यहाँ है, लेकिन आपके जो ओरिजिनल विंडो में वर्क स्पेस 1 में वो नहीं था। अभी मैं वो अप्लाई करूंगा ना तो ये ऑर्डर बुक ट्रेड बुक हट जाएगा, खाली टेस्ट, प्रोडक्ट वो जो पहले सेव था वो आ जाएगा। ओके, मैंने वो सेव नहीं किया था तो इसलिए बिना सेव का जो भी है वो पिछले वाला सेव है वो आ गया। तो अभी मैं मतलब यहीं से भी कर सकता हूँ। मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ से भी आपको HW सेट कर सकता हूँ। सेट करने के बाद आप यहाँ अप्लाई करोगे तो आपको अभी HW की 3 का जो हमने पिछली बार सेट किया था वो लोड होगा, जहाँ पे आपको टेस्ट और, एक मिनट, मैं ये सेव नहीं किया, 3F8, ये सेव करना था, मैंने सेव नहीं किया। तो ये ओके हो गया, सेव हो गया, अप्लाई किया कि अभी मैं जो वर्क स्पेस सेट करता हूँ, अभी आपको पहले जो है वो आ जाएगा, पहला पूरा जो लोड हुआ था वो आ जाएगा। अभी मैंने वो चेंज करके HWQ सेट किया तो आपको वो जो मैंने अभी सेव किया वो ट्रेड बुक के साथ आना चाहिए। अभी देखिए ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक सभी साथ में आपका मल्टीपल ये सेव हो गया। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। आप अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से आप यहाँ सेट कर सकते हो, कलर सेटिंग कर सकते हो, और यहाँ पे आप मार्केट वॉच सेव कर सकते हो। ये मार्केट वॉच से लिंक टू एक्सेल कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको बीच में कोई सेपरेटर ऐड करना है तो ये बीच में सेपरेटर ऐड कर सकते हो। ये सभी मतलब चार्ट्स का डेटा हो, पिवट टेबल का डेटा हो, कॉर्पोरेट एक्शन का डेटा हो, सभी आपको यहीं से मिल जाएगा राइट क्लिक ऑप्शन में। और सभी को लगभग जो भी रेगुलरली यूज होता है उसके लिए हमने शॉर्टकट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये था अपने जो डीलर वाइज का डेमो। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हो। नहीं, फॉरगॉट पासवर्ड में डीलर का ही डालना है, डीलर का पैन और DOB डाल के सेट करना है। एनी क्वेश्चंस निखिल सर? So Charan, we have questions on the chat. Piyush ji has asked, it shows invalid DOP and password. So Piyush ji, just one thing, for resetting the password, we are working on the dealer installation. Once the dealer ID, dealer EXE is installed, your password will be available to reset on Thursday, which is the 20th of Feb. So on Thursday, you will be able to actually log in into the dealer ID. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. Okay. Uh, uh, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for now, you need to, use the existing Odin dealer. So for
So for all the partners, please note, reset password will be available on Thursday, 20th of February. Madhusudan ji, we will unmute you, so you can also let us know your query by verbally asking it. हेलो सर, मैं ये एमआईएस जो ऑर्डर टाइप में जो एमआईएस एमटी और सीएनसी है, सीएनसी तो डिलीवरी वेस्ट, एमआईएस किसके लिए अगर मैं डालूं तो एमआईएस के कौन सा प्रोडक्ट होगा? इंट्राडे है सर, एमआईएस मतलब है इंट्राडे। ना? हाँ एमआईएस में सिलेक्ट करके मैं अगर कुछ भी बाई या सेल करूं तो ऑटोमेटिकली 3 बजे के बाद वो स्क्वायर अप हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट। और मान लीजिए कोई भी डिलीवरी पोजीशन बाई करेगा तो एमटी करके बाई करना पड़ेगा, एमटीएफ नहीं, डिलीवरी मतलब सीएनसी। सीएनसी। और एमटी, वो जो एमटी प्रोडक्ट वो क्या है? वो मार्जिन ट्रेडेड फंड है सर। वो अगर मार्जिन ट्रेडिंग में कोई भी बाई, वो भी डिलीवरी बोल के ही आएगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अगर मार्जिन में कोई भी बाई करेगा तो एमटी करके भी बाई कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। और बास्केट ऑर्डर में जो बोल रहे हैं ना, वो जो जो बास्केट ऑर्डर मैंने सब सेटअप, वो सेटअप करने के बाद वो प्लेस बास्केट करने से ऑटोमेटिकली बास्केट में चला जाएगा क्या ऑर्डर, या हर दिन एक्सेल पुट करना पड़ेगा? मैं समझा नहीं सर, क्या मतलब हर दिन आपको इंपोर्ट करके प्लेस करना पड़ेगा? हर दिन इनपुट करके प्लेस करना पड़ेगा क्या बास्केट में? क्योंकि आपका मतलब आज का जो इंपोर्टेड फाइल है वो अलग होगा, कल का अलग हो सकता है ना, चेंजेस हो सकते हैं। मान लीजिए मैं सेम फाइल, मैं सेम हर दिन पुट करूंगा तो नहीं बास्केट में वो होगा नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, वो इंपोर्ट आपको मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली करना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट और सर। और मान लीजिए 3 क्लाइंट का एक ही ऑर्डर लगेगा तो मल्टीपल ऑर्डर कैसे लगाऊं हाँ, बास्केट? तीन क्लाइंट का एक ही ऑर्डर है तो आपको खाली स्क्रिप्ट चेंज करके डालना है। अच्छा। आप फाइल में से भी इंपोर्ट करके डाल सकते हो, फ्रंट एंड में से भी कर सकते हो। ओ, एक बार आप दिखाएंगे कैसे दिखाना है, एक बार वेब में? हाँ, एक मिनट मैं आपको हाँ। दिखा रहा हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल भी किया, आपको एक क्लाइंट को मल्टीपल स्क्रिप्ट का पोजीशंस डालना है ना, करेक्ट है ना? मान लीजिए सेलिंग पोजीशन डालना है या बाइंग पोजीशन डालना है, एक ही स्क्रिप्ट का 5 ओके क्लाइंट। ओके, मैं बाई का एक मार्केट ऑर्डर डाल रहा हूँ। हाँ एक क्लाइंट इसके लिए एक 10 क्वांटिटी इसका डाल रहा हूँ। हाँ। और मैं क्लाइंट चेंज किया, जो भी दूसरे क्लाइंट के लिए डाला उसका 10 क्वांटिटी डाला। या आपको सॉरी, आपको सेम क्लाइंट को मल्टीपल स्क्रिप्ट डालना है ना? हाँ मल्टी ना, हाँ तो सेम नहीं, मान लीजिए मल्टीपल काइंड को एक एक स्क्रिप्ट। हाँ, मल्टीपल क्लाइंट को एक स्क्रिप्ट ऐसा डाल सकते हो सर। अच्छा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप एक काम करके आप एक्सपोर्ट कर दो। मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं डेस्कटॉप में अपना ये सेव कर देता हूँ और एक्सपोर्ट करने के बाद आपको वो जो मार्केट वॉच में आ जाएगा। मैं यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ऐसा कॉपी करके डायरेक्टली आप मॉडिफाई करके डाल सकता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, विप्रो हो या ये भी हो, ऐसा सेव करके मैं ये भी इंपोर्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली। देखिए ये हो गया अभी अच्छा अच्छा, वो विप्रो। वैसे भी, मतलब वैसे वैसे भी कर सकते हो, वो फाइल कर सकते डाउनलोड कर करने के सकते बाद उसके ऊपर सिलेक्ट करके मैं चेंज कर सकता हूँ। आप अकाउंट आईडी भी चेंज कर सकते हो, क्वांटिटी प्राइस जो भी है आपके हिसाब से वो चेंज करके डाल सकते हो। मैंने अभी खाली तो सिंबल का एग्जांपल उसके दे दिया। उसके बाद प्लेस बास्केट करने से हो जाएगा? ये प्लेस करने पर सभी चारों ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके। प्राइस, ये प्राइस मैं तो सिलेक्ट कर दे सकता हूँ या मार्केट ही करना पड़ेगा प्राइस को? नहीं नहीं नहीं, प्राइस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने हाँ। खाली एग्जांपल के लिए डाला ओके है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ। ठीक है।
हाँ सर, कोई और क्वेश्चंस? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। और एक बात है, वो जो मार्केट वॉच जो सेट करना है वो मैनुअली एक बार दिखाएंगे कैसे सेट करना है? मान लीजिए नया कोई मार्केट वॉच मेरे को सिलेक्ट करना है, मैं हाँ, अपने हिसाब से मार्केट वॉच बनाऊंगा, तो मार्केट वॉच से जाके ग्रुप ग्रुप में, ग्रुप में जाके मार्केट में ग्रुप, ऐड ग्रुप ग्रुप में करना से, पड़ेगा, हाँ ऐड में, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एबीसी खोल के मैं क्रिएट कर देता हूँ, उसको ऐड करना होगा। ऐड करना, ऐड हो गया यार, यहाँ से आप स्क्रिप्ट ऐड करते जा सकते हो। ओके ओके ओके, वो मतलब वो एबीबी को सिलेक्ट करके ऐड करना पड़ेगा। हाँ, ऐड करना पड़ेगा। और एक चीज है, यहाँ पे क्विक सर्च भी ऑप्शन है, अच्छा। जहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जांपल एनएफओ का कोई एक एक्सपायरी का सभी स्क्रिप्ट ऐड करना हो फ्यूचर स्टॉक का, तो आप यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक करके, सॉरी एक मिनट, फ्यूचर स्टॉक सेलेक्ट करके, और आपको अभी सभी एक 27 फेब का सभी एक्सपायरी डालना है, तो फेब ऐसा करने के बाद यहाँ पूरा लोड होता है ना, उसके हाँ, बाद सभी सभी ऑल करके ऐड कर सकते हो सभी स्क्रिप्ट्स, उस मतलब एक्सपायरी सभी का सभी, सभी फ्यूचर का रेट चलाएगा। हाँ सभी स्क्रिप्ट्स का ऐड हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके, ये ऑप्शन भी है। ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक है, थैंक्स। थैंक यू। Thank you, Madhusudan ji, for asking such relevant questions. For this will also help us help our other partners to understand the features in a better way. Any other partners have any other queries? Please let us know. So Charan or someone else from the team will be able to guide. Piyush ji, yes, Odin will work on 20th also. We'll try. We'll keep you updated whether we are able to provide the new EXC trading also on 20th or on 21st. So 20th for sure you will be able to reset the password. However, we'll keep the communication updated whether you can also place orders on the new Kambala EXC or not on 20th itself. पीयूष जी, आपका आईडी आप अभी एग्जिस्टिंग ओडिन में ही वर्क करेगा। आपका सेम आईडी 20th को आप कंबाला EXE में आप यूज कर पाएंगे। हेलो। हाँ सर। बोलो, और एक क्वेरी है कि जैसे ये कंबला का जो सॉफ्टवेयर हो के आज ही इंस्टॉल करना पड़ेगा कि हम लोग ये पहले का जो सॉफ्टवेयर वही चलेगा अभी? सर आज आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है। आपका ओडिन EXE ही चलेगा ट्रेडिंग के लिए। आप नेक्स्ट 2 days आप ओडिन यूज कर सकते हैं। कंबाला का एक्चुअल ट्रेडिंग परमिशन आपका थर्सडे या फ्राइडे से स्टार्ट होगा सर। ओके ओके, उतना दिनों तक मैं ऑर्डिनरी चलू हाँ चल जी, लूंगा। हाँ जी, और हाँ जी, सेम 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 कंप्यूटर में कंबला भी लोड हो पाएगा ना? हाँ जी। ओके बट जैसे ही आपका हम कंबाला अनेबल कर देंगे सर, फिर आप ओडिन से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ओके ओके, ठीक है ठीक तो है ठीक वो जो हम अनेबल का हमारा एक्टिविटी है सर, वो थर्सडे हम फ्राइडे करेंगे। है। ओके Thursday ओके being the expiry will ensure that the risk is minimal in terms of installing or enabling the new AC. So we'll keep the communication upfront. हम आपको बताएंगे कल तक कि हम आपका थर्सडे को अनेबल कर रहे हैं कि फ्राइडे को। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।
So in case if we don't have any further queries, we'll wind up the walkthrough session in the next 2 minutes. In case any of the partners have any queries, please let us know so that we can answer them right in the session. Rituji, we have allowed you to unmute. You can let us know in case you have any queries. Yeah. Hi, sir. Good afternoon. I've got a question. Do you have individual clients, will they be having a Kambala app on their phone also for their individual logins, or should we continue with the DG thing that we have for Prabhudas? Sir, for now, the digital customers will not be able to access the orders that you place through the Kambala EXA. Okay. So, say for example, in my case, I have got my family accounts with Prabhudas. So, on a special request basis, will I be able to access the Kambala client for myself or no? Sir, your family accounts, if they are using our current PL Digited app, Yeah. they will be able to use as it is. However, any orders that you place, sir, through the dealer ID, the new dealer ID of Kambala, those orders will not be shown in the customer's PL Digited app. Okay, so and when is this synchronization gonna happen? Like how long? So this synchronization will happen in the next 10 to 15 days. 10 to 15 days. And you don't have a specific Kambala app for clients, do you? We do have, sir. We do have. At the moment, that is under testing phase. So once we are all through, we are ensured that all the segments and all the features are available in the app as well. We'll release the app also to you and your set of customers. Yeah, because I've used your app before. It's actually very good. So I was expecting a timeline by when I can personally log in and trade in that app. Anyway, Absolutely, thank you, sir. absolutely, sir. That will happen in the next 2 weeks, sir. All right, fantastic. Thank you so much. Thank you, sir. So any further queries, please let us know through the chat, or you can also let us know if in case if you want to speak, we'll unmute you so that you can raise your questions. So thank you so much. Thank you all the partners for joining this session. We hope we were able to guide you in terms of all the new features and the usability of the new dealer EXE. In case if you have still any further queries, you have our email IDs, ithelpdesk@plindia.com. And also we have our PLBD team. In case you have any queries, you can connect with them, and they'll be able to guide you through the correct stakeholders for any concerns, any queries that you have in the new dealer EXE. So again, thank you so much for joining. Thank you, Charan, for walking us through the new EXE. With this, we'll wind up the call. Thank you, everyone. Yeah. Thank you so much. Thank you everyone for your time. Thank you.